welcome you once again. Let's continue the chapter 5 from history, rulers and buildings. So in the previous video, we discussed about the constructions under in the 11th century. So let's continue the chapter. Two technological systematic developments are noticeable from the 12th century. We already discussed about the 11th century. Now we will discuss about the 12th century. Means two technological systematic developments are noticeable from the 12th century. What were they? The first one is the weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the ark. Like this, you can see in the picture, this type. Means the weight of this structure was carried by the ark. This type of ark. This architectural form was called arcuate. और इसको क्या बोला जाता था? क्योंकि ये आर्क पे पूरा वेट को इस पे रखा गया आर्क बना के, तो इसको क्या बोलते थे? आर्कुएट. यू कैन सी इन फिगर 5a. नाउ कंपेयर विद दिस लाइक दिस. लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. और कंस्ट्रक्शन में क्या कहते थे? लाइमस्टोन सीमेंट वाज यूज्ड. दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट which when mixed with stone chips hardened into concrete. Means when limestone cement was used in construction, and it was used in the when it was used mixed with cement or stone chips, it was hardened. This made construction of large structures easier and faster. Due to this, the construction was become easier and faster. Take a look at the construction site in figure 6. You can see how the construction site in this figure. You can see in figure 6. You can see the construction doing by this method. Now discuss this next topic: building temples, mosques and the tanks. कि क्यों बनते थे ये? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजा क्या करता था, अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, कितना पावरफुल है, वो दिखाने के लिए भी बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस को किया करता था. नेक्स्ट वी विल डिस्कस बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स. टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. मंदिर या मस्जिद बहुत सुंदर उससे बनाए गए. क्यों? क्योंकि वो क्यों बनाए गए थे? पूजा की जगह थी. वर्शिप मतलब भगवान की पूजा की जगह थी. एंड दे वर ऑल्सो meant to demonstrate the power, wealth and the devotion of the patron. Means temples and mosques were built for why they were built? Because they were the places of worship, and they also demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. Take the example of the Rajrajeshwara temple. An inscription mentions that it was built by King Rajadeva for the worship of his god. जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें कि राजराजेश्वर टेम्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसपे इंस्क्रिप्शंस जो लिखे हुए हैं उसमें क्या बताया गया है कि वो टेम्पल किसने? राजदेव ने बनाया था. किसके लिए? जिस भगवान की वो पूजा करते थे, उनकी पूजा के लिए मंदिर बनाया गया था. और भगवान कौन थे? राजराजेश्वरम. नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर. अब आपने देखा होगा कि राजराजेश्वर टेम्पल, राजदेव, जो राजा का नाम, भगवान का नाम, मंदिर का नाम, वो कैसे हैं? बहुत सिमिलर हैं दो सब. द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक ए गॉड. और राजा क्यों भगवान के नाम लिया करते थे? भगवान के नाम पे अपने नाम ज्यादातर उससे मिलते जुलते रखते थे. क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि हम भी भगवान की तरह ही पूजे जाएं, लोग हमें भगवान के रूप में ही माने. Through the rituals of the worship in the temple, one god, Rajadeva, honored another Rajrajeshwaram. और एक समय की प्रथा थी, रिचुअल था कि एक भगवान जो है, वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड, की एक देव की पूजा होगी. जो कौन होगा? किसकी? राजराजेश्वरम, जो मंदिर का नाम दिया गया, उनकी पूजा की जाएगी. द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स. जितने भी बड़े मंदिर हैं किसके? राजाओं के द्वारा बनवाए गए. The other lesser deities in the temples were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler. बस जिस राजा ने बनाया है उसमें एक बड़ी मूर्ति जिस भगवान की, बाकी और डाइटीज भी होंगी, छोटी मूर्तियां भी हुआ करती थी मंदिर में जो सबॉर्डिनेट होंगी और मूर्तियां. The temples was a miniature model of the world
रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाइज। और टेम्पल्स को क्या कहा गया? मिनिएचर मीन्स एक छोटा मॉडल था पूरे वर्ल्ड का। सपोज कीजिए जिसमें बड़े में क्या, बड़े राजा ने जिस भगवान की मूर्ति लगवाई उसके बाद और छोटे देवताओं की भी मूर्तियां रहती थी। As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on the earth. और जिस तरह से वो अपने भगवान की पूजा करते थे मंदिर में, उससे क्या लगता था कि उन्होंने भगवान को इस धरती पर ला दिया। जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, जिस देव की पूजा करते हैं, उससे क्या लगता था कि उन्होंने ईश्वर को ब्रॉड जस्ट रूल की एक न्यायप्रिय शासन चलाने के लिए उन्होंने भगवान को धरती पर ले आया। ये तो हिंदू राज्यों की बात होगी। नाउ वी कम टू मुस्लिम सुल्तान्स की, कि मुस्लिम सुल्तान क्या करते थे। जो मॉस्क्यूज बनाए गए उनमें क्या होता था? मुस्लिम सुल्तान्स एंड Padshahs did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles described the Sultan as the shadow of the God. मुस्लिम्स में हमें पता है कि किसी मूर्ति की पूजा तो करते नहीं है, मतलब वो क्या करेंगे कि भगवान को ऐसे नहीं, लेकिन भगवान की परछाई, शैडो ऑफ द गॉड। पर्शियन कोर्ट में क्या कहा गया है कि सुल्तान को क्या माना गया कि भगवान की परछाई, भगवान की परछाई है, शैडो ऑफ द गॉड सुल्तान को माना गया। An inscription in the Quat al-Islam Mosque explained that God chose Alauddin as the king because he had the qualities of Moses and Solomon. एक बुक है जिसमें इंस्क्रिप्शन, एक जगह इंस्क्रिप्शंस लिखे गए। उन इंस्क्रिप्शंस में क्या कहा गया है कि मॉस्क जो क्वावत अल इस्लाम मॉस्क है, जिसमें ये एक्सप्लेन किया कि गॉड जो है उसने क्या किया, अलादीन को क्या चूज किया है, अलादीन एज ए किंग। अलादीन है कि उसको एक राजा के रूप में क्यों चूज किया है? क्यों कि उसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक शासन करने के लिए जरूरी थी। द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, जो क्या कर सकता था, लोगों को न्याय दिला सकता है। द ग्रेट ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ द चोआस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। और क्या कहा कि जिस तरह का राजा बनेगा तो पूरे उस जगह पे सिमेट्री, एक जैसी समानता लाएगा। और ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ चॉइस, मतलब किसी से भेदभाव किए बिना एक सिमेट्री आएगी। सो यू कैन सी द पिक्चर्स इन दिस फिगर। दिस वाज द पिक्चर ऑफ अ, देखिए किबला मीन्स एक मॉस्क, दिस वाज द पिक्चर ऑफ अ मॉस्क। इन दिस पिक्चर यू कैन सी, in this picture you can easily see, देखिए डायरेक्शन मीन्स द वेस्ट डायरेक्शन इज किबला, डायरेक्शन टुवर्ड्स मेक्का मीन्स जिस जगह बैठ के पूजा करेंगे उसके डायरेक्शन कहाँ रहता था, जिस तरफ इनकी मुस्लिम जहाँ पूजा करते मक्का मदीना जो इनके पवित्र एक स्थान मानते हैं, उस जगह की तरफ डायरेक्शन रहता था। देखिए यहाँ पे वेस्ट लिखा होगा, एरो से शो किया गया है। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. जैसे जैसे नई डायनेस्टीज पावर में आती गई तो राजा क्या करने लगा कि जितने भी राजा क्या चाहते थे कि जो to emphasize their moral right to be rulers, कि हम एक ऐसे रूलर बने जो लोगों के लिए क्या हो कि हमें लोग फॉलो करें, हमें लोग फॉलो करना चाहें, तो एक ऐसा राजा हम बने, एक ऐसे रूलर बने। Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with the God, especially important in an age of rapid political change. और उन्होंने इसीलिए मंदिर बनवाए कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स फॉर वर्शिप, पूजा के लिए रूलर्स ने क्या किया, तो एक क्या चांस उन्हें मिलेगा कि लोगों के साथ, भगवान के साथ उनका क्या होगा, क्लोज रिलेशनशिप बढ़ेगा। स्पेशली कब, जब क्या था, एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, कि धीरे धीरे राजनीतिक या पॉलिटिकल चेंजेस भी बहुत ज्यादा आने जा रहे थे। तो बोला इस ड्यूरेशन में हमारे जो रिलेशंस हैं भगवान के साथ वो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेजेस टू बी लर्न एंड पायोस and tried to transform their capital and cities into a great cultural centers that brought fame to their rule and their reign. राजा इस तरह के काम भी करता था जिससे कि उनकी प्रसिद्धि हो, कि चाहे उनकी जहाँ जिस जगह उनकी कैपिटल है, उनके ग्रेट कल्चरल सेंटर्स जो उनके शहर, चाहे वहाँ पे मेले लगाकर हो या कोई और धार्मिक अनुष्ठान ऐसे किए जाए
जिससे कि उनका फेम दूर दूर तक फैले। It is widely believed that the rule of the just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. और ये कब था? It was widely believed. उस समय एक विश्वास ये भी था कि the rule of just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. कि स्वर्ग में कहा क्या कि कोई भी राजा जब एक अच्छे से रूल करता है, इट वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ द जस्ट किंग, मतलब कब रूल करता है अच्छे से, तब क्या होगा, तो राजा ने क्या किया कि अगर रूलर है तो उसने अपने जनता के लिए पानी, एक प्रीशियस हम कहते हैं एक रिसोर्स है, पानी के बिना हम नहीं जी सकते, तो उसने क्या किए, बहुत सारे टैंक बनवाए राजा ने, पानी के रिजर्वॉयर जहाँ पानी इकट्ठा किया जा सके, और जिस राजा ने ऐसा किया उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई। Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir, जिसमें एक एग्जाम्पल हम सुल्तान इल्तुतमिश का लेते हैं, जिसके बहुत ज्यादा लोगों ने इज्जत सम्मान दिया क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े लार्ज रिजर्वॉयर जस्ट आउटसाइड दिल्ली खुन्हा वहां बनवाए। इट वॉज कॉल्ड द हौज-ए सुल्तानी, जिसका क्या नाम दिया गया, जो वाटर रिजर्वॉयर बनवाए इल्तुतमिश ने उसको नाम दिया गया था हौज-ए सुल्तानी, और द किंग्स रिजर्वॉयर, या जिस जगह राजा का रिजर्वॉयर, किंग्स रिजर्वॉयर। कैन यू फाइंड आउट ऑन मैप इन चैप्टर 1? ओके, रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स वर पार्ट ऑफ ए टेम्पल, मॉस्क्यू, और क्या जो रूलर्स बनवाते थे, चाहे टैंक्स बनवाएं या रिजर्वॉयर्स बनवाएं, वो क्या होते थे, छोटे या बड़े जैसे भी ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा भी इसको यूज किया जा सकता था। और समटाइम्स क्या होता था, ये टैंक्स किसके पार्ट हुआ करते थे, चाहे किसी मंदिर या मॉस्क के। उसका एक एग्जांपल हम अमृतसर में देख सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल में आपने देखा होगा कि जो लोग गोल्डन टेम्पल जिन्होंने देखा है, जिसने इमेजेस देखी है, तो कहाँ देखा होगा कि ये देखिए इसमें पानी, ये भी क्या है, रिजर्वॉयर है, वाटर रिजर्वॉयर, ये बनवाया गया था, जिसको हमने देखो एग्जाम्पल भी दिया है, नॉट ए स्मॉल टैंक और द इन द जामी मस्जिद फिगर 7 में आप देख सकते हैं, और गुरुद्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रीगेशन फॉर सिख, एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।